Now I would like to welcome two-time Asian Games gold medalist, three-time Asian gold medalist, two-time World Cup champion, and Arjun Award awardee, Mr. Rakesh Kumar, who is also going to be our head coach for this season. Without much further ado, I would like to request Mr. Mustafa Ghaus, our CEO, to speak a few words and make some. As the Haryana Steelers, we're a young team. We're a newer team in the Pro Kabaddi league and in the whole ecosystem of Kabaddi, and we're very excited to kick off our third look for a winning start in the season. We've had a very long and extensive pre-season where the team has been together for over 2 months at our training base in Vijayanagar, where they've been under the watchful eye of Rakesh. So we've really been focusing on getting our combinations right and getting our team fit and strong and ready for the season. It's a very grueling and long season. You spend close to 13 weeks together working on winning a lot of matches against tough opponents. So I think this 2 months with the team is very important, and really excited to see this team kick off. I think one of the excitements for us is that Kabaddi is so popular in Haryana and in this region that we really like to come back and really like to express ourselves in front of our fans and in front of all you keen Kabaddi lovers. The decision was made a little while ago that this year, being our third season, we would be playing all our home games in Panchkula, and we're really excited about that. We've had 2 very good seasons in Sonipat with a lot of love and admiration from the local Sonipat crowd, and we felt that it was a good opportunity for us to build that and expand our fan base, and we're hoping that we get even better response and even better support from the local fans here in Panchkula. So I'm really excited about that. I'd also like to take this opportunity to thank everyone that is supporting the team, some that have come on board, like some of our more long-term partners like Borosil that have been supporting the team for very long. We wouldn't be able to do this without them. And obviously, most importantly, support that we get from our parent company, the JSW Group. We have been very aggressively supporting sport over the last 6-7 years, and none of us would be here and none of us would be doing the work that we're doing if it wasn't for the support of the JSW Group and for that as well. I think with that, really looking forward to a good season, a fun season. It's a great sport. We love the sport of Kabaddi, and we love the way the team has come together. I will hand over the mic to Rakesh sir to give you a little bit more insight on how the team is shaping up. But again, from my part, thank you all for being here. Thank you all for taking the time out, and I really look forward to interacting with you all through the course of the season, and especially during our home game. सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हो, मैं हरियाणा स्टूडेंट टीम से जुड़ा हुआ एज ए कोच, चीफ कोच। काफ़ी खुशी हो रही है मुझे कि एक तो मैं फर्स्ट टाइम एज ए कोच, इससे पहले तो मैं प्लेइंग करता था, खेलता था। तो खेल में और कोचिंग में काफ़ी डिफरेंस है। खिलाड़ी काम होता है, खेलता है, वो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है, अप डाउन चलती रहती है, लेकिन कोच की काफ़ी जिम्मेवारियाँ होती हैं। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है खिलाड़ियों से बेहतर परफॉर्मेंस कराना। तो पिछले 1.5 महीने से हमने कंटिन्यू कैंप किया है। तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस था खिलाड़ियों को वो मैंने साझा किया है उनके साथ। मैंने उनको जो मेरे से जितना हुआ उनसे कहीं बेहतर मैंने कोशिश की है, और काफ़ी हद तक मैं कामयाबी रहा हूँ। मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस में लेना, और एज ए डिसिप्लिन अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर डिसिप्लिन में रहता है तो काफ़ी सम्मान, काफ़ी इज्जत मिलती है। काफ़ी अच्छा लगा, और हार्ड वर्क भी किया है। हमारी हरियाणा स्टेट टीम बिल्कुल यंग टीम है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि
यंग टीम होने के साथ साथ, क्योंकि यंग खिलाड़ी में इंजरी के बहुत कम चांस होते हैं और हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया है अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी फिटनेस पे। और काफ़ी हमारा जो हमारे ट्रेनर थे वहाँ पे हमारे सेंटर में विजयनगर में, तो हमारी जो छोटी छोटी चीज़ थी, हमने जो फिटनेस की बातें थी वो सारी हमने टेस्ट करके उसी हिसाब से हमने अपनी टीम की तैयारी की है। मेरे सभी खिलाड़ी बिल्कुल फिट हैं और मैं प्रत्येक साइड पे दो दो खिलाड़ी मेरे पास, चाहे वो लेफ्ट कॉर्नर है चाहे राइट कॉर्नर है, तो अल्टरनेटर मैंने रखा है। ये चीज़ भी एक प्लस पॉइंट है मेरी टीम के लिए। और बस यही है कि अभी सीज़न शुरू होने वाला है। हम इससे पहले मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी टीम चैंपियन बन गई, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं अपनी टीम को चैंपियन बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और जितना हो सकेगा, जहाँ तक होगा, जो अच्छा खिलाड़ी जो टीम के लिए बेहतर होगा, जो टीम को परफॉर्मेंस देगा, अच्छा खेल के दिखाएगा, उसी को मैं टीम में रखूँगा। हालांकि सभी खिलाड़ी मेरे अच्छे हैं, जिसमें कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं और कुछ नया टैलेंट भी है जिन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया कैम में। तो बस इसी चीज़ को लेके मेरा नया दौर है ये एज ए कोचिंग में, तो उस चीज़ को मैं लेके इसी टीम में उतरूँगा और अपने खिलाड़ियों को एक साथ लेके चलूँगा। और आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए हो और हमारा क्या हम आपसे काफ़ी उम्मीदें करते हैं, क्योंकि देखो कबड्डी को ऊपर ले जाने में आप सबका योगदान बहुत ज़्यादा है। अगर आप हमारे साथ नहीं होते तो शायद कबड्डी इतना ऊपर नहीं जाता। तो बस यही है कि अभी पंचकुला हमारा शिफ्ट हुआ है, तो इसके पीछे भी बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ लोकल ऑडियंस ज़्यादा है, लोकल पब्लिक मतलब ज़्यादा है। हरियाणा तो कबड्डी का डिसाइड किया क्योंकि पिछली बार जयपुर पिंक पैंथर का होमलैंड था, तो काफ़ी मतलब यहाँ से वो मिला था। तो हमने भी यही डिसाइड किया हमारे मैनेजमेंट की, पंचकुला करके देखते हैं, कुछ नया बेहतर शायद हमें कबड्डी को ऊपर ले जाने के लिए मिले। तो बस इसी आशाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं पूरे जोश से और मेरी टीम पूरे जोश से करेगी इस सीज़न में और अच्छा करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, देखो मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे जो कैप्टन है टीम के मिस्टर धर्मराज चरलाकर, तो प्लीज़ कम। और जैसा कि मेरे से पूछा गया कि यही चॉइस क्यों थी, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये मोस्ट एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, मैं इनके साथ काफ़ी टाइम में खेला हूँ। ये मेरे डिपार्टमेंट से हैं, ये भी रेलवे में, मैं भी रेलवे में, मैं इनकी कप्तानी में बहुत खेला हूँ। मतलब इतनी उम्र में ये इतने ज़्यादा फिट हैं, तो इसके बारे में तो जितने शब्द कहूँगा उतने ही कम है। उसके साथ साथ एक चीज़ और है इनके साथ, क्योंकि ये हमेशा टीम को एक साथ लेके चलते हैं, टीम को अच्छा मोटिवेशन देते हैं, खिलाड़ियों जूनियर खिलाड़ियों को मोटिवेशन देते हैं और टीम को मतलब कंट्रोल करके रखते हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे में थोड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि अच्छे खिलाड़ी थे हमारे सभी, लेकिन वो एक कंट्रोल करने वाला टीम में कोई नहीं था। तो मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि विकास है हमारा बहुत अच्छा खिलाड़ी, वो भी काफ़ी अच्छा भी खेला है। तो मैंने उससे वैसे ही जनरली पूछा था कि विकास आपको कैप्टन बना दिया जाए। वो बोला नहीं सर, मैं कैप्टन नहीं, मैं एज ए प्लेयर ही ठीक हूँ, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है, और अगर आप इनको जिम्मेवारी दोगे तो मैं और बेहतर करूँगा, क्योंकि एक जिम्मेवारी में नया खिलाड़ी हूँ, मेरे कंधों पे ज़्यादा भार हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं भी परफॉर्मेंस में कहीं ना फर्क पड़ जाए, इसलिए आप कैप्टन सरला को बनाओ। तो हमने डिसाइड किया मैनेजमेंट से बात करके कि सरलाधन ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इतना सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और टीम को लीड भी करेगा और टीम को संभालेगा भी। तो बस इसलिए हमने प्लान किया था और इसलिए धन्यवाद सरलाधन को हमने कैप्टन नियुक्त किया।